Camlin Kids Power is a social awareness initiative by Kokuyo Camlin that uses art, music, and progressive learning techniques to gain an understanding of important social issues. Camlin! Let's have fun! Hi, I'm Priyanka Seth Pandit. We're here today in Dharavi with a Swachh Bharat campaign sponsored by Camlin, which is a social initiative. Our aim is really to influence these children here who are the future citizens of India and to make them aware about public health and the things that they can do to make India cleaner as well as safer in terms of disease and disease prevention. We hope to start small and make this bigger in the future. Today is a start for the Swachh Bharat campaign in this Dharavi slum. Welcome to Camlin Kids Power Workshop. जो हम Camlin Kids Power Workshop कर रहे हैं आज. Camlin पेंट बनाते हैं, ब्रश बनाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं, हर किस्म के आर्ट ऑब्जेक्ट्स और स्कूल और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, रबर, पेंसिल. एंड दे वांट टू टीच यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे एंड दैट इज स्वच्छ भारत. कभी सुना है? हाँ, क्या सुना है बताइए. साफ कर ग्रीन मुंबई क्लीन मुंबई के बारे में. ग्रीन मुंबई क्लीन मुंबई. गांधी जी का ये सपना था कि पूरा भारत साफ सुथरा रहे. तो पहले हम एक गाना गाएंगे स्वच्छ भारत के बारे में और उसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं कि हम स्वच्छ भारत कैसे रख सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ क्या कर सकते हैं. ठीक है. One day I was walking सड़क पर when a horrid smell my nose did meet. It was a foul and putrid smell. The description, friends, I dare not tell, but my nose is weaker than my curiosity. And so I turned into the street, and a scary sight my eyes did meet. Hey, Swachh Bharat, Swachh Bharat, clean up India, here I come. There's no time like here and now. Follow us, we'll show you how. Pick up garbage when you see it. Find a bin, it's not so hard. Reuse bottles, reuse bags, reuse containers and reuse rags. Hey, Swachh Bharat, Swachh Bharat, clean up India, here we come. There's no place like here and now. Follow us, we'll show you how. Hey, Swachh Bharat, Swachh Bharat, clean up India, here we come. There's no place like here and now. Follow us, we'll show you how. Woo! In this most critical segment, Priyanka focuses on the ideals of the Swachh Bharat campaign. The objective of this workshop is not about discussing effective cleaning techniques, rather it is about effecting behavioral change and the prevention of littering. It is about enlightening these young minds about the dangers of open defecation, washing one's hands frequently, and the hazards this poses to public health. Our objectives are to help these children learn these important messages and spread them amongst their friends and their community. नो ओपन डेफिकेशन, इसका मतलब है कि पेशाब पखाना बाहर ओपन में नहीं करना है.
नीचे सड़क पे नहीं करना है, खुले में नहीं करना है। क्यों? इससे गंदगी फैलेंगे, उसी से बीमार पड़ते हैं, इसके लिए। इससे गंदगी फैलेगी, एब्सोल्युटली राइट। फातिमा? उससे गंदगी फैलेगी और उस पर मक्खी बैठेगी, वही मक्खी खाने पे आके बीमारी फैलाएगी। एक्सीलेंट। तो वहाँ कुछ पखाना पड़ा हुआ तो एक मक्खी वहाँ बैठेगी, मक्खी आपके खाने में बैठेगी, आप वो खाना खाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उस पर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, राइट। और वो मक्खी आपके मुंह में बैठ सकता है, वो मक्खी आपके खाने में बैठ सकता है, जो भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए बाहर हमें नो ओपन डेफिकेशन में, खुले में आपको बाथरूम नहीं जाना है। फिर कहाँ जाना चाहिए? वो टॉयलेट में। फ्लश वाले टॉयलेट इस्तेमाल करने हैं, तो सारा गंदगी बिल्कुल नीचे हमारे ज़मीन के नीचे पाइप सिस्टम के अंदर जाएगा और साफ़ सुथरा सब सफाई रखेंगे। कचरा जो है, जो हम फेंकते हैं, कहाँ फेंकना चाहिए? 2 टाइप्स के ऑफ कचरा होते हैं। ये समझो सूखा कचरा के लिए है। किसके लिए? समझो ये सूखा कचरा के लिए है और ये लाल वाला गीला कचरा के लिए है। अच्छा बताओ, ये चीज किसी भी खाने का आइटम जो है ना, किसी भी खाने का आइटम उसको गीला कहलाता है, तो वो मैं इसमें डालती, यस, लाल वाला में। और ये प्लास्टिक बैग ऐसे कुछ करूं पहले? एक साथ डालेंगे ना तो कीटाणु दोनों बहुत बढ़ जाएंगे, इसीलिए इसको अलग डालने का, इसको इसलिए। और दूसरी चीज़, स्मेल भी आता है ना। हाँ, स्मेल भी आता है जब सड़क में आप वॉक कर रहे हैं। जैसे वो पहले पेज पे वो छोटी सी लड़की वॉक कर रही थी ना, उसके सड़क में भी एक स्मेल आ रहा था ना, तो वो भी अच्छा नहीं होता है ना। हाँ, कुछ आप बोलना चाह रहे थे फातिमा? हाँ और दूसरे देश दूसरे जगह से यहाँ पे आते सब बोलेंगे इधर पे गंदगी फैली हुई है, अच्छी जगह नहीं है ये, इधर पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो औरों के लिए भी है, लेकिन हमारे लिए भी हमको सफाई रखना चाहिए। ये कचरा कैसे उठाना चाहिए हमें? समझो झाड़ू से नहीं उठा पा रही हूँ तो क्या करना चाहिए? हाँ, ग्लव पहनना चाहिए और हमेशा हाथ धोया करना है ना। बाथरूम में जाओगे हाथ धोगे, कचरा उठा के हाथ धोगे, ग्लव्स पहने फिर भी। After the discussion about the Swachh Bharat ideals, the children of the Acorn Foundation use Camlin paints and glitter to decorate dustbins, which will then be taken onto the streets of Dharavi in a mini cleanup drive. The dustbins are color-coded for dry and wet waste to teach the children the importance of proper waste disposal. Finally, we hit the streets for a super fun cleanup that the children leap to with great enthusiasm. It is wonderful to see the children carry out this task with no inhibitions or shame, proving the point that influencing young minds is the true catalyst of change. मेरा नाम लक्ष्मी कांबले है। मैं धारावी में बचपन से हूँ। जो चीज़ आज बच्चों को सिखाया है, अगर वही चीज़ हम लोग के टाइम पे कोई हम लोग को सिखाता तो आज इतनी धारावी गंदी है करके कोई नहीं बोलता। पर कभी कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई चीज़ यहाँ से उठा के हम कहीं डस्टबिन में डालें, वो काम कोई नहीं करता। इसकी वजह से यहाँ पे कितने रेक स्पीकर्स आए, उन लोगों ने वो काम शुरू किया। जब उन लोगों ने वो काम शुरू किया तो उनको, जैसे कि बाहर से कोई लोग जाते हैं वो उनको चिढ़ाते हैं, तो उनको भी खुद को बुरा लगता है ये चीज़ कि भाई मुझको कोई कचरा चुनने वाला बोलता है। अभी अगर आज मुझको बोला जाएगा कि हाँ तू कचरा चुनती है, तो मेरे को एकदम ये लगता है कि मेरे को हाँ सही में मैं कचरा चुनती हूँ। एक शर्मिंदगी महसूस होती थी। सुबह से जो एक्टिविटीज़ हुई वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि सब बच्चे मिलके एक डब्बा लेके उसको पेंट करके उसको बाहर जाके सब चुन रहे, सब रास्ते का कचरा, और उनको सूखा और गीले का भी फ़र्क मालूम पड़ रहा है। तो वही चीज़ आज मैंने इन बच्चों में देखा कि इन बच्चे आराम से जाकर चुन रहे, किसी को कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ये एक चीज़ मैंने आज यहाँ पे अच्छी सी देखी। आज का जो ये स्वच्छ भारत का कैंपेन था वो देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग पिछले 2008 से ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं। आज जाके कहीं पे लग रहा है कि ये कैंपेन की वजह से बात दुनिया में फैलेगी। अगर छोटों से बड़े तक हर एक के कान में अगर ये बात गई, हर एक जन अपने तरीके से साफ़ सफाई रखना चालू करे,
एक टाइम आएगा ऐसा कि आगे जाके पूरे भारत में स्वच्छता दिखेगी, हर कोई अपना कूड़ा कचरा सब सही सलामत वेस्ट मैनेजमेंट हो पाए। आज हमने बहुत सारी साफ सफाई की, गंदगी दूर हटाने की बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कचरा जहाँ पर भी दिखे वो उठा के सीधी जगह पर डालना चाहिए, और गीला कचरा जहाँ पर है गीला कचरे की डस्टबिन है गीले कचरे में डालना चाहिए, और सूखे कचरे की डस्टबिन में सूखा कचरा डालना चाहिए, और गंदगी जहाँ पर भी दिखे वहाँ क्लीन करना चाहिए। जो यहाँ पे सीखा वहाँ पे भी सिखाएंगे जाके कि ग्लव्स पहने बगैर ये नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं उठाना चाहिए, हाथ पे प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जो ऐसे गंदे गंदे हाथों से बाहर जाके आते हैं, गंदे गंदे हाथों पे खाना खाने लग जाते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, और हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। जाके सिखाना चाहिए हर माँ बाप को। कोई तो माँ बाप ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी समझ में नहीं आता है कुछ, उनको भी समझाना चाहिए। बाहर गए हम लोग, बाहर जाके हम लोग साफ करें, कचरा उठाए। अच्छी अगर हम सफाई नहीं करें तो हमको बीमारी होगी। कचरा मोहल्ले में फैलाना नहीं चाहिए। आज जो हमने सीखा है वो हम लोग जाके अपनी अम्मी को बताएंगे, फिर अम्मी उन लोग बाकी लोग को बताएंगे। उसी से जैसे कि अम्मी सबको बताएंगे, और जितना मुंबई को अच्छा लगेंगे उतना बाहर के लोग आके बोल सकते कि हाँ मुंबई में सब साफ सुथरा रहता है, वहाँ पे गंदगी नहीं है। आप उनके मोहल्ले को साफ सुथरा रखना चाहिए, और गंदगी रहेगी तो बीमारी फैलेगी। मोहल्ला स्वच्छ रहेगा तो वायरस स्वच्छ रहेगा। थैंक यू कैमलन। Simply walking up to a poor person and telling the person that you have to stop littering or you clean up your act, that person is going to turn around and say, have you been to our toilets? Have you seen what kind of water we get? For every civic amenity, the poor in the slums have to pay double the price. What you and me take for granted, because we are taxpayers, we get water into our houses, we get electricity, we get clean toilets. Every person in a slum has to run pillar to post to get even a ration card, to get the child's education. There are no teachers in municipal schools. So Acorn Foundation believes that unless we organize the poor, unless we get civil society to recognize their rights, and we get our government to take the fruits of development into these slums, talking about civic sense doesn't have any meaning to the poor. The happiness which art brings to children's faces, and the kind of images which they are drawing, you can see that the kids are talented, and education is not only about books. And today what Camlink has done by bringing this ink and the paint to the kids, and I think every corporation in the country must use their CSR activities to do something for the poor. And if you go into the slums and meet these kids and do workshops for the children, the change will come from there. It will come from within the kids, and then the kids will join in every campaign which you take up, including Swachh Bharat. Camlin Kids Power is a social awareness initiative by Kokuyo Camlin that uses art, music, and progressive learning techniques to gain an understanding of important social issues. These will range from conservation, bullying, recycling, understanding children with special needs, the Swachh Bharat campaign, and the importance of staying in school and becoming contributing members of society.